When I came to USA in 2014, people were like, you cannot buy a house in USA on H-1B visa. When I came to USA in 2014, people were like, no, you are on H-1B visa. Your visa might get denied, so do not buy a house. And today, November 18, 2023, as of now, I have 2 houses. One is been rented and this is my primary home. That means these are the top myths that you have heard. And also, yes, visa might get denied and जब होगा तब देख लेंगे. In this video, I'm going to share with you how to buy a house in USA. I do not understand complicated things, so I make life easy for me. And now, in this video, I'm going to make your life easy to buy a house in USA. Number 1, buying and renting the property. जब भी मैंने घर लेने का सोचा, that time I did lot of maths कि भाई मैं buy करूँ या rent करूँ, buy करूँ या rent करूँ. Eventually I found out that buying and renting I'll end up paying the same thing. Let's look at this emotionally and practically. Emotionally देखा जाए तो यार I'll tell कि बाबा this is my house, ये मेरा घर है. But if you look at practical way, you are building equity in this house. You have some kind of stability. Like no one will come here and tell you कि भाई आज तुझे घर खाली करना है. And also there is a possibility of appreciation. Second thing is pre-approval letter. This is the letter which is given by the lender/bank, which indicates that I can buy a property in USA. Basically what happens is a check is done against me to ensure कि भाई मेरे पास पैसे है कि नहीं. एक debt to income ratio is been calculated. Basically a check is done against me to give them assurity कि I can pay to the lender. Let's go to the screen and let's see my pre-approved letter. Pre-approved letter. So this is how the pre-approved letter looks like. Purposely I have blurred few items. Purchase price depends on your request. So you have to request them for a particular purchase price, and depending on your salary, the purchase price will be approved. Documents needed for this pre-approved letter is tax statements, current address proof and pay slips. Number 3, checklist. Where to buy a house. And this is according to my perspective. Number 1 would be Indian community. See, I had this terrible thinking in my head before कि I'll buy a house where there are a lot of Americans, okay, and there should not be any Indians around me. ऐसा मुझे लगता था, and I know this is the terrible thinking, so don't judge me. This is what I was before. Then मैंने जब सोचा बाद में कि भाई केटी तू मुझे बोल, you will call your parents later, right? Then you will have kids also, right? तब तेरे पेरेंट्स किसके साथ सोशलाइज करेंगे? तब तेरे जो बच्चे हैं वो हिंदी में अगर बात करना है तो किसके साथ बात करेंगे? So that made me think, and that is the reason I'm telling you, I'm sharing this learning with you guys. Buy a house in Indian community, not for you. मुझे पता है तुम लोगों को भी इंडियन नहीं चाहिए, सब अमेरिकन चाहिए. बट गाइज अंडरस्टैंड कि वी नो आवर कल्चर वेरी वेल, राइट? दिवाली के टाइम पे यू विल नॉट फील लोनली जस्ट बिकॉज यू विल गो एंड मीट लॉट ऑफ पीपल. सो दैट इज द फर्स्ट लर्निंग दैट कैन शेयर इट टू यू. बाय इट इन इंडियन कम्युनिटी. मतलब ऐसा इंडियन कम्युनिटी नाम नहीं रहता है, बट यू हैव टू गो एंड सर्च फॉर द थिंग्स कि बाबा वेयर इंडियंस लिव मोस्ट. एंड आई विल टेल यू गाइज, इंडियंस आर वेरी इंटेलिजेंट. जहाँ पे अगर वो घर ले रहे, दैट मीन्स उधर की एप्रिसिएशन भी बहुत होगी और आजू बाजू स्कूल भी रहेंगे. नंबर 2, स्कूल डिस्ट्रिक्ट में. व्हेन आई बॉट माई फर्स्ट हाउस, वी वर लाइक कि नो, सी वी आर नॉट प्लानिंग किड्स येट, तो वाई वी शुड बाय अ हाउस इन स्कूल डिस्ट्रिक्ट. बट अंडरस्टैंड दिस थिंग, वेन एवर यू आर बाइंग अ हाउस, ट्राई टू थिंक इट इन फ्यूचर परस्पेक्टिव कि भाई ये घर तू बेचेगा कभी ना कभी तो, राइट? या बेचना नहीं है, लेकिन थिंक लाइक दैट, राइट? जब भी वो बंदा लेगा, ही विल हैव द सेम थिंकिंग कि भाई आजू बाजू स्कूल है कि नहीं. अगर स्कूल है, ज़्यादा है, सो school district. Now you'll ask me how to find if my house is in school district or not. I got you. So I come to this website called niche.com and I added my area, Omaha, where I currently live in. You can also play with this website and add zip code also, so that you can narrow down the search, and then you will see the list of schools that are available. And also there is a filter called diversity where you'll get to know कि कितना diversity है स्कूल में. इस वेबसाइट में आप एकेडमिक्स भी चेक कर सकते हो स्कूल का, जैसे कि इधर लिखा है परसेंटेज प्रोफिशिएंट ऑफ रीडिंग इज 74% और परसेंटेज प्रोफिशिएंट इन मैथ इज 76%. सो डिपेंडिंग ऑन दिस ऑल्सो यू कैन सेंड किड्स टू द स्कूल. इस वेबसाइट में ये भी लिखा है कि ये रैंकिंग उन्होंने कैसे दिया गया है, तो यू कैन चेक आउट दैट एज वेल.
नंबर 3 इज होम ओनर्स एसोसिएशन, इसको HOA भी बोलते हैं. सो व्हाट हैपेंड इज रिसेंटली माय फ्रेंड ही बॉट अ हाउस, जस्ट वन सैलरी है, तो ही वाज जस्ट टॉकिंग टू मी जस्ट लास्ट मंथ ही, तो ही वाज जस्ट टॉकिंग टू मी, भाई ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया यार. आई आस्क्ड हिम कि व्हाट हैपेंड. सो ही सेड कि सी आई कैलकुलेटेड माय EMI और थोड़ा सेविंग और जो बेसिक नेसेसिटी घर का है, ये सब होके भी मुझे लगा कि भाई थोड़ा तो बचेंगे पैसा, लेकिन अभी बच ही नहीं रहे. आस्क्ड हिम व्हाई, तो वो बोल रहा है कि बाबा एक नया कुछ तो है, दैट इज समथिंग कॉल्ड एज HOA, होम ओनर्स एसोसिएशन. सो व्हेनेवर यू आर बाइंग अ हाउस, मेक श्योर दैट यू आस्क द क्वेश्चंस अबाउट HOA. व्हाट इज HOA? HOA मतलब जो बाहर का लॉन मूविंग है, बाहर का जो कचरा है, राइट, दिस इज ऑल इंक्लूडेड इन दैट HOA, राइट, बट इट इज द फिक्स्ड अमाउंट दैट यू हैव टू पे एवरी मंथ. यू विल टेल मी कि भाई ठीक है ना, कोई ना कोई तो कर रहा है. देखो, कोई ना कोई तो कर रहा है, ऑब्वियसली अगर इतना है तो इतना चार्ज करेगा, वो आप इतने से भी कर सकते हो. यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ और यू कैन हायर सम थर्ड पार्टी मैक्सिकन गाय टू डू द लॉन मूविंग एंड ऑल दैट स्टफ इन लेसर मनी. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि HOA इज बैड, इट इज जस्ट दैट इट इज एन एडिशनल कॉस्ट. नंबर 4, डिफरेंट लोकेशन में आप अगर घर ले रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आई एम इन ओमाहा, इधर विंटर्स है मुझे पता है, बट इफ माई फ्रेंड इज कमिंग फ्रॉम फ्लोरिडा, राइट, फ्लोरिडा में बहुत गर्मी रहती है, एंड इफ ही इज प्लानिंग टू बाय अ हाउस इन ओमाहा, देन व्हाट आई थिंक इज ही हैज टू कम हियर फर्स्ट. ऑनलाइन मत करो, अभी कोविड का ज़माना गया है. ट्राई टू कम हियर एंड सी वेदर आपको अच्छा लगता है कि नहीं. द अदर डे आई वाज टॉकिंग टू माय कॉलीग एंड ही वाज लाइक ही मूव्ड फ्रॉम टेक्सास टू ओमाहा, एंड जब उसने लिया, द प्रॉपर्टी ओनर्स जो यहाँ पे रहते हैं ना, वो उसको क्वेश्चन कर रहे थे, आर यू श्योर यू आर मूविंग फ्रॉम टेक्सास टू ओमाहा? क्योंकि ओमाहा में इट्स लाइक वेदर, वी हैव डिफरेंट वेदर्स, वी हैव समर, वी हैव विंटर, वी हैव फॉल. तो विंटर्स आर वेरी हाई, इधर बहुत स्नो गिरता है, सो पीपल उतना मतलब प्रिफर नहीं करते हैं, बट देर आर लॉट ऑफ पीपल हु लव स्नो. सो अंडरस्टैंड वन थिंग, वेदर प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ. आई नो अभी घर अभी सस्ता मिल रहा है, तो इट्स अप टू यू कि इफ यू आर रेडी टू कॉम्प्रोमाइज और नॉट. के बाद आता है प्रॉपर्टी टैक्स. मतलब जहाँ पे भी आप रहते हो, जहाँ पे भी आपकी प्रॉपर्टी है, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू नो यू हैव टू पे प्रॉपर्टी टैक्स फॉर इट टू द स्टेट गवर्नमेंट, एंड दिस इज क्वाइट हेवी. लेट्स गो टू द स्क्रीन. So I'm on smartasset.com. I have added the city and purchase price of 500,000. So average county tax rate is 2.16 and property tax is 10,800. उसके बाद आता है फ्यूचर रीसेल प्रोस्पेक्ट्स. फ्यूचर रीसेल प्रोस्पेक्ट्स मतलब जहाँ पे भी आप घर ले रहे हो, मेक श्योर कि आजू बाजू जो घर रहेंगे ना, उनकी एप्रिसिएशन प्राइस देखना. So go to Zillow.com. Search for the house which you want to buy. Click on the market value and see the prices. Somewhere around September 2nd 2011 में 87,500 को ये परचेस किया गया था और नवंबर 2023 में ये लिस्टेड फॉर सेल है फॉर 210,000. दैट इज 57.9% प्राइस इसका इंक्रीज हुआ. उसके बाद चेक क्राइम रेट्स इन द एरिया. हाउ डू यू डू दैट? लेट्स गो टू द स्क्रीन अगेन. सो ये है crimegrade.org. तो आप इधर हाउस एड्रेस डाल सकते हो और क्राइम रेट्स चेक कर सकते हो कि आजू बाजू में क्राइम रेट्स कितने हैं. ऑल्सो मैं ये बोलता हूँ कि टेक राउंड्स इन द कम्युनिटी. जब हम लोग घर मतलब देखने जाते थे ना, हम लोग 2-3 बार तो ऐसे चक्कर मारते थे, जस्ट यू नो जस्ट एक फील लेने के लिए. और एक बार क्या होता था, बाहर फैमिलीज ऐसे रहते थे, सो वी यूज टू टॉक विद देम कि भाई हाउ इज द कम्युनिटी हियर. नंबर 4 पे चलते हैं गाइस, फाइंड अ रियल्टर. मतलब यूएस में यू कैन बाय अ हाउस विथ रियल्टर, विदाउट रियल्टर. विदाउट रियल्टर कुड बी अ डिफिकल्ट टास्क, क्योंकि कैसा है, सब पढ़ना पड़ता है, वी नीड टू डू लॉट ऑफ रिसर्च. अगर तुम लोगों के पास टाइम नहीं है टू फाइंड अ गुड रियल्टर, यूजुअली व्हाट आई प्रीफर इज कि गेट अ देसी रियल्टर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि देसी लोगों के पास बहुत सारे ट्रिक्स रहता है एंड दे विल डेफिनेटली हेल्प us in buying a good house also. मतलब हम लोगों को ज़्यादा रिसर्च नहीं करनी पड़ती है, we can rely on that देसी रियल्टर. और देसी रियल्टर ऑब्वियसली फंसाएंगे नहीं, क्योंकि वो लोकल रहेंगे, उनका तो आमने सामने मिलना जुलना रहेगा ही. सो आई डोंट थिंक वो फंसाएंगे हम लोगों को. और वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग गाइस, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग टू द रियल्टर. इट्स द पर्सन हु इज सेलिंग द हाउस, दे विल पे टू द रियल्टर. द अनदर थिंग इज, देसी रियल्टर जो यूएस में है, दे आर नॉट लाइक इंडियंस. मतलब वो तो आपको कॉल करके पूछेंगे नहीं एवरी टाइम, ये घर ले लो, नहीं ये घर ले लो ना प्लीज़, ये ना ये घर ले लो, ऐसा कुछ बोलेंगे नहीं, ऐसा फॉलोअप्स भी नहीं करेंगे. दे विल जस्ट कॉल यू, एक्सप्लेन यू कि भाई ये घर है, देखना है, नहीं देखना है, दैट्स टोटली फाइन. आई रियली अप्रिशिएट माई 2 रियल्टर्स, बोथ वर देसी. मैंने जो फर्स्ट घर लिया था, उन्होंने हमारे साथ कम से कम 8 या 9 महीने ना
हमारे साथ एकदम पेशेंटली काम किया। उन्होंने कभी मुझे बोला नहीं कि घर ले ले केटी, ये ले ले, कभी भी नहीं। ही इज लाइक ओके दिस इज व्हाट इट इज, नाउ यू मेक द डिसीजन। नंबर 5, राइट टाइम टू बाय द हाउस। गाइज मैं एक बोलूँ आपको, देयर इज नो राइट टाइम टू बाय द हाउस। आई नो देयर इज नो राइट टाइम। बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि भाई घर ले लो या घर ले लो। मैं एक ही पूछता हूँ उनको, और आपको भी एक ही क्वेश्चन पूछूंगा। आपके पास अगर डाउन पेमेंट है मिनिमम 10%, 5% में इस मार्केट में आई वुड नॉट रिकमेंड, 10% मिनिमम है और बाजू में थोड़ा इमरजेंसी फंड भी है, देन बाय द हाउस। आई नो कि इंटरेस्ट रेट अराउंड 7.8 कुछ तो चल रहा है आज की तारीख में, बट इग्नोर दैट, जस्ट बाय द हाउस इफ यू हैव 10% ऑफ डाउन पेमेंट, और उसके बाद आप रीफाइनेंस कर सकते हो। बट इफ यू डोंट हैव डाउन पेमेंट, किधर भी पर्सनल लोन ये लोन मत ले लो, घर आराम से ले लेना, पहले डाउन पेमेंट के लिए सेव करना। नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है ना, सुन लो, बराबर से सुन लो। विच इज़ द राइट हाउस टू मी, राइट? जैसे कि हस्बैंड एक बोलता है कि मुझे ऐसा चाहिए वो ऐसा चाहिए, वाइफ बोलती है नहीं मुझे ऐसा चाहिए उधर चाहिए ये चाहिए वो चाहिए। देयर इज नो परफेक्ट हाउस, यू हैव टू बाय द हाउस एंड मेक इट परफेक्ट। वन ऑफ द सोल्यूशन विच आई कैन गिव यू इज, एक पीस ऑफ पेपर ले लो, एक साइड में हस्बैंड के प्रायोरिटीज, एक साइड में वाइफ का प्रायोरिटीज, कॉमन आइटम्स देख लेना। जब भी आप घर लेते हो, ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल हस्बैंड का मैच नहीं कर रहा है प्रायोरिटी, दैट टाइम यू बोथ सेट एंड अंडरस्टैंड कि भाई is this really your priority? Is this something that you can compromise? Usually क्या होता है कि आर्ग्यूमेंट्स होते हैं इन फ्रंट ऑफ द रियल्टर, ये सब होंगे, एंड इट्स गुड टू हैव आर्ग्यूमेंट्स, क्योंकि घर लेने से पहले इफ यू आर हैविंग आर्ग्यूमेंट्स विच इज वेरी गुड, घर लेने के बाद भाई मैंने ये बोला था मैंने वो बोला था, ये सब कुछ नहीं चलेगा। सो मेक श्योर दैट वो पीस ऑफ पेपर में लिखो तुम लोगों को क्या चाहिए, और कुछ अगर थिंग्स वो हाउस में नहीं है, ट्राई टू सिट एंड सी कि भाई if this is something I can compromise or not. बहुत सारे ऐसे चीज है which you can buy the house and you can customize it later whenever you have some money. Number 7 is what to look for in the house. तो मैं बोलता था, मैं और अनुपुरा मेरी वाइफ जब जाते थे घर देखने के लिए, हम लोग क्या करते थे पता है, ऐसे एंटर मारते थे और देखते थे कि भाई हाँ कितना पॉजिटिव लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। नहीं, दिस इज़ नॉट द प्रैक्टिकल वे ऑफ लुकिंग एट इट। हम लोग, हमारे फ्रेंड कपल है, वो हमारे साथ ही आते थे घर देखने के लिए। मतलब क्या होता था कि पहले हम लोग घर देखते थे, अगर हम लोगों को पसंद आया, वी यूज्ड टू आस्क देम टू भाई आ जाओ और मुझे हेल्प करो टू इन ऑर्डर टू गेट दिस हाउस। तो वो क्या करते थे पता है, वो आते थे, पहला देखते थे ऐसे फ्लोरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई फ्लोरिंग क्या है, वुडन फ्लोरिंग है या कारपेट फ्लोरिंग है, बहुत सारे फ्लोरिंग रहते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि भाई कौन सा फ्लोरिंग है, एंड जब भी वो मतलब आइडेंटिफाई करते थे, ही वाज जस्ट मेकिंग श्योर कि भाई आगे जाके मुझे अच्छे क्लाइंट मिले। अगर मतलब एक घर बेचना भी पड़े, राइट, वो वीज़ा डिनार वाला कुछ होता है, बेचना भी पड़े तब मुझे अच्छे पैसे मिले, तो वो पहले फ्लोरिंग चेक करते थे। उसके बाद ये थोड़ा ट्राइपॉड अपन मूव करते, आया मूव आराम से। उसके बाद वो क्या करते थे पता है, वो जाके देखते थे कि ये काउंटर टॉप कैसा है, काउंटर टॉप, जिसको ये काउंटर टॉप बोलता है, इसको आइलैंड बोलता है। सो ही यूज्ड टू चेक कि ये आइलैंड कैसा है, काउंटर टॉप कैसा है, फ्लोरिंग कैसा है, बाद में ड्राईवॉल कैसा है, ड्राईवॉल एकदम स्ट्रांग है कि नहीं। और उसके बाद आप रियल्टर को ये भी पूछ सकते हो कि भाई ये जो रेफ्रिजरेटर है ये कौन देगा, ये मतलब ओनर देगा जो सेल कर रहा है या हम लोगों को लाना है। डिश वॉशर जो इधर आता है, ये डिश वॉशर ये कौन देगा, मतलब ओनर देगा, शायद ये ओनर ही देता है, पर एक बार ऐसा रहता है कि भाई डिश वॉशर हम लोग सब लेके जाएंगे, ऐसे रहता है, तो खुद को ही करना पड़ता है। ये क्वेश्चंस पूछ सकते हो, नो क्वेश्चंस आर फनी, नो क्वेश्चंस आर स्टूपिड, इफ यू डोंट आस्क एनीथिंग द आंसर इज ऑलवेज नो, राइट? तो कीप आस्किंग क्वेश्चंस लाइक दिस, वॉशिंग मशीन वो और ड्रायर, इज दैट इंक्लूडेड इन द प्राइस, ये सब क्वेश्चंस पूछना बहुत जरूरी है। नंबर 8, लिसनिंग टू रियल्टर। आई नो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो पकड़ के चलो कि आप एक रीसेल प्रॉपर्टी आपको पसंद आई एंड यू वांट टू बाय दैट हाउस, ठीक है? तो बाय करने के लिए यू हैव टू गिव दैट प्री अप्रूव्ड लेटर, जो मैंने फर्स्ट में बोला था, यू हैव टू गिव इट टू द ओनर। मतलब एक काइंड ऑफ सीरियसनेस भी आता है कि भाई हाँ ये प्री अप्रूव्ड है, मतलब ये सीरियस बायर है, तो वो आपको देना पड़ेगा। एंड यू हैव टू बिड ऑन दैट हाउस। मतलब फॉर एग्जाम्पल घर की कीमत अराउंड 300,000 है, देन यू हैव टू बिड द हाउस कि भाई मैं ये 270 दूंगा। इंडिया में कैसा होता है कि हम लोग ऐसे आमने सामने बैठ के करते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि इफ़ आपका रियल्टर है, सो आवर रियल्टर एंड जो घर बेच रहा है उसका रियल्टर, वो बैठ के दे डिसाइड
ऑन अ वैल्यू, मतलब आप बिड करते हो, राइट, एक कुछ तो बिड करना है और वो भी मतलब टाइम लेते हैं, अराउंड 1-2 दिन टाइम लेंगे और बाद में तुम लोगों को रिप्लाई करेंगे। रिप्लाई मतलब बोलेंगे कि भाई हम लोगों को चलेगा, या वो लोग ये भी बोल सकते हैं कि ये प्राइस हम लोगों को पसंद नहीं है, बट अगर ये प्राइस आप अगर देते हो तो शायद अपन ये डील कर सकते हैं। तो और बाद में ऐसे 2 वे कम्युनिकेशन होता है, लेकिन आप डायरेक्टली जाके ओनर को पूछ नहीं सकते, राइट। ये यू हैव टू गो थ्रू रियल्टर इफ़ यू आर गोइंग थ्रू द रियल्टर। एंड ऑल्सो यूजुअली क्या होता है रीसेल प्रॉपर्टी में, हम लोग पूछते हैं इंडिया में कि भाई ये घर क्यों बेच रहा है, क्योंकि हम लोगों को वही स्टूपिड सा रहता है ना कि भाई ये बेच रहा है मतलब कुछ तो प्रॉब्लम रहेगा। ये चीज़ ना हम लोग मतलब कर नहीं सकते यूएस में। तो हम लोग जब रीसेल प्रॉपर्टी देखते थे ना, तो हम लोग क्या करते थे पता है, घर जाते थे, घर एकदम स्टेज्ड रहता था, अच्छा रहता था, कैंडल्स विंडल्स लगाए रहते थे, तो फोटोज़ रहते थे। तो फोटोज़ देख के हम लोग क्या करते थे पता है, उसका नीचे अगर नाम मिला ना तो वो नाम लेके हम लोग इंस्टाग्राम में डालते थे। जैसे कि एक रीसेल प्रॉपर्टी थी, हम लोग गए थे, फोटोज़ थे, फोटोज़ के नीचे नाम था, उनको हम लोगों ने इंस्टाग्राम में चेक किया। इंस्टाग्राम में ये लिखा गया था कि दे आर मूविंग फ्रॉम ओमाहा टू नॉर्थ कैरोलिना। तो हम लोगों को लगा भाई हाँ कि ये बंदा मूव हो रहा है, दैट इज़ द रीज़न ही इज़ सेलिंग द हाउस। एंड दिस इज़ द ट्रिक विच आई कैन टेल यू, अगर ऐसा कुछ होता है रीसेल प्रॉपर्टी देखते हो, ट्राई टू डू दिस। ये थोड़ा स्टॉकिंग है बट इफ देयर इज अ वे टू डू इट, व्हाई कांट यू डू इट। रियल्टर का मैंने इसलिए सुनो बोला था क्योंकि ये मेरे साथ क्या हुआ था, जब हम लोग पहला घर देख रहे थे, एक रीसेल पसंद आई थी, उसका वैल्यू अराउंड 280 कुछ तो था, ऐसे लग रहा है मुझे। तो 280 के पास तो हम लोगों को ऑफ़र देना था। तो मैंने बोला अनुराग भाई जो हमारे रियल्टर थे पहले, कि भाई 250 का दे दो। लेकिन अनुराग भाई ने बोला कि भाई ये केटी ये नहीं मिलेगा 250 में, यू हैव टू कोट 270 और अबाउट 280 क्योंकि घर अच्छा है और उनके पास ऑफर्स भी है। तो मैंने बोला नहीं अनुराग भाई ऐसे नहीं, अपन 250 कर। तो ही लाइक ओके, क्योंकि इधर देसी अपने थोड़े यूएस स्टाइल में बात करते हैं, मतलब देसी नहीं ऐसा कुछ करते नहीं। ये लाइक ओके एज पर योर विश, उन्होंने डाला। बाद में पता चला कि वी लॉस दैट ऑफर और वो घर बेचा गया था अराउंड कितना 290 कुछ तो, मतलब लुक एट दैट, मतलब उस टाइम की बात है, अराउंड कोविड के टाइम पे। तो इसलिए जब भी अगर कुछ रियल्टर बोलते हैं ना कि भाई ये करो, तो आई थिंक यू डू सम सर्च। मैंने कुछ आजू बाजू रिसर्च नहीं किया था, बट इफ यू डू सम रिसर्च अबाउट इट एंड टॉक टू द रियल्टर, बट ट्राई टू सी कि बाबा रियल्टर का सब सुनो, वो बोलेंगे बराबर बोलेंगे, जो हम लोगों को चाहिए वही बोलेंगे बिकॉज दे आर फ्रॉम बायर साइड, राइट, दे विल डेफिनेटली डू दैट। एंड ऑल्सो देसी है तो उनको पता है कि भाई आमने सामने किधर तो इंडियन स्टोर में मिलेंगे, सो दे विल नॉट फूल यू। नंबर 9, क्लोजिंग प्रोसेस। ध्यान से सुनना, ठीक है। जब भी आप घर लेते हो इंडिया में तो क्या करते हो, यू रजिस्टर दिस हाउस रजिस्ट्रेशन होता है डिपेंडिंग ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ द प्राइस। तो ये प्रोसेस को इधर क्लोजिंग प्रोसेस बोलता है, राइट, दे कॉल इट क्लोजिंग प्रोसेस। तो जब भी आप क्लोजिंग करने जाते हो, मतलब रजिस्ट्रेशन करने जाते हो, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज लेंडिंग क्रेडिट्स एंड ब्रोकरेज रिबेट्स। ब्रोकरेज रिबेट्स जो रहता है ना, वो अनऑफिशियल रहता है। आई टेल यू व्हाई, होल्ड ऑन, बट लेट्स टॉक ऑन लेंडिंग क्रेडिट्स। मतलब जब भी आप लोन लेते हो कौन सी भी कंपनी में, तो कौन से लेंडर से, तो यूजुअली वो क्या बोलता है कि देखो भाई क्लोजिंग प्रोसेस में हम लोग तुमको एक अराउंड $2,000 दे देंगे, ऑफ दे देंगे, या 3,000 ऑफ दे देंगे। हम लोगों को जब हम लोगों ने फर्स्ट टाइम घर लिया था, उन्होंने बोला कि भाई क्लोजिंग सब हमारे तरफ से, सब क्लोजिंग आपको कुछ पैसे ही नहीं देना है, राइट, और सब हमारे तरफ से। कोविड के पहले था। लेकिन आज ये जो नया घर लिया उसमें मुझे लगता है कि अराउंड $1,900 का मुझे लेंडिंग क्रेडिट्स मिला था। कई दफ़ा बैंक ये भी ऑफर देता है, बोलता है कि मैं आपको लेंडिंग क्रेडिट्स कुछ नहीं दूंगा, बट आई विल लोअर डाउन योर APR रेट, मतलब इंटरेस्ट रेट जो है हम लोग लोअर डाउन करेंगे। तो ये मैथ आपको थोड़ा करना पड़ेगा। ये रियल्टर के साथ बात कर सकते हो। रियल्टर हैव सम एसोसिएशंस विद द लेंडर्स, ठीक है, उनके जो पहचान के रहते हैं, एंड अगर उनके थ्रू जाते हो तो उनको भी थोड़ा डेफिनेटली मिलेगा, लेकिन आपको भी थोड़ा अच्छा बेनिफिट होगा। सो इफ दैट इज द केस, मेक श्योर कि आप रियल्टर के साथ ये बात करो अबाउट लेंडिंग क्रेडिट्स एंड ऑल्सो ब्रोकरेज रिबेट्स ना, ये थोड़ा कैच है, ये ऑफिशियल नहीं होता है। तो यूजुअली देसी रियल्टर, ये बहुत सारे एक्चुअली अमेरिकन भी करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं पता है, वो बोलते हैं कि देखो अगर मेरे से घर लेते हो तो आई विल डू समथिंग, वो बोलेंगे नहीं, आई विल डू समथिंग फॉर यू। दो ही रियल्टर ये थे ना हमारे, दो रियल्टर, जैसे कि पहले घर के पहले रियल्टर और दूसरे घर की दूसरी रियल्टर।
एंड both the realtors were very kind, they were very nice to us. घर लेने के बाद मुझे लगता है कि एक अराउंड 15-20 डेज में both were very kind enough to come to our house saying that कि भाई ये आपका रिबेट है. मैं अभी वो अमाउंट बोल नहीं सकता, बट it's also क्या बोलता हूँ मैं, इट्स काइंड ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन हाउ यू आर विद देम. आई होप कि मैंने सब कवर कर दिया है. आई होप कि आपका घर बने, आपकी फैमिली बड़ी हो और आपको सुख प्राप्त हो. हाउस वार्मिंग में मुझे बुलाना प्लीज़. ओके, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो क्लिक ऑन लाइक, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड कमेंट करो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन. अगर वो क्वेश्चन कमेंट लायक है तो मैं रिप्लाई करूँगा, वरना मैं एक फर्स्ट क्लास आपको वीडियो एकदम सरल भाषा में एक्सप्लेन करूँगा.